In this series of lecture, we will cover the following topics. First unit is introduction, second unit is point-wise theory of bioinorganic chemistry, third unit is conceptual question in bioinorganic chemistry, and fourth unit is multiple choice questions in bioinorganic chemistry, fifth unit is previous year CSIR NEET solved question, and sixth unit is previous year IIT GATE solved question. Now we will start first unit, introduction. First of all, we have to know what is bioinorganic chemistry. The word bioinorganic chemistry is made of two parts, biological plus inorganic chemistry. A field examining the role of metals in biology is called bioइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसा केमिस्ट्री का फील्ड जिसमें हम लोग मेटल्स का रोल बायोलॉजी में पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक मेटल्स का रोल बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दिस फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज ए मिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का फील्ड जो है ये बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्सअप है। मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज ब्रीदिंग डिपेंड ऑन मॉलिक्यूल्स दैट फॉल विद इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमेन। बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो ब्रीदिंग में इम्पॉर्टेंट काम निभाता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन से बिलोंग करते हैं। द एरिया ऑल्सो इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक मॉडल्स और मिमिक्स दैट इमिटेट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बिहेवियर। कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटासियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर make more than 99% of the mass of the mammals. Carbon is very important. Themes in bioinorganic chemistry. In bioinorganic chemistry, many distinct systems are recognizable. The main areas are: first one is a metal ion transport and storage. Metal ion transport, it means transport of metal ion and its storage. A large number of transporter proteins. Transporter means transport करने वाला. For example, sodium potassium pump. This pump is responsible for the transport to sodium and potassium across the cell membrane. A storage proteins. There are some proteins which store metal ions and small molecules are involved in transport and storage of metal ions in biological system. Enzymology. Enzymology is related to the study of enzymes. Large varieties of metal containing enzymes are involved in biological system to perform different enzymatic function. बहुत सारे मेटल कंटेनिंग एंजाइम हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और एवरी एंजाइम हैज ए डिफरेंट वर्क। हर एक एंजाइम अलग अलग कार्य को संपादित करता है। टॉक्सिसिटी। सम मेटल्स आर टॉक्सिक टू बायोलॉजिकल सिस्टम टू। कुछ मेटल्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए टॉक्सिक है, हानिकारक है, उनको नुकसान पहुंचाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिवेशन प्रोटीन्स। सेवरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर वेल नोन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बहुत सारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में अच्छे से ज्ञात हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन while myoglobin is responsible for the storage of oxygen in our muscles. Bioorganometallic chemistry. You know what is organometallic chemistry? A branch of chemistry in which we study about metal carbon bond. But bioorganometallic chemistry, it is a branch of
Bioinorganic chemistry, in which we study metal carbon bond in biological systems. For example, hydrogenase, it has metal carbon bond. Similarly, methyl cobalamin, this is the first organometallic compound in biological system. It has cobalt carbon bond, that is a metal carbon bond. Metals in medicine, मेटल्स का यूज मेडिसिन में भी यूज किया जाता है फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट पर्पजेज. मेटल इन मेडिसिन आर यूज. बीमारी को डायग्नोसिस और साथ साथ में ट्रीटमेंट करने के लिए मेटल का यूज मेडिसिन में किया जाता है. फर्स्ट है मेटल्स इन डायग्नोसिस. फॉर डायग्नोसिस मेडिकल इमेजिंग मेटल साइन आर यूज. किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए मेडिकल साइंस में मेटल आयन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल टेक्नीटियम फॉर इमेजिंग पर्पसेस 99 mTc. 99 is the atomic mass and m is the metastable. It means its stability is metastable, not is the most widely used radioisotope agent. ये सबसे ज़्यादा अधिक यूज किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है. इट इमिट्स ओनली गामा रेज. ये 99 mTc जो है ये केवल गामा रेज इमिट करता है. इट डजेंट इमिट अल्फा और बीटा रेज. यह अल्फा और बीटा रे इमिट नहीं करता है. अल्फा एंड बीटा रेज आर मोर एनर्जेटिक एंड डैमेजिंग टू सराउंडिंग सेल्स देन द अल्फा रेज. सॉरी, हियर विल बी गामा रेज. अल्फा और बीटा रेज जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और डैमेजिंग है इन कंपैरिजन टू गामा रेज. देयरफॉर दे आर नॉट यूज्ड फॉर द इमेजिंग पर्पसेस and that's why technetium is suitable for radio imaging. Gadolinium 3, iron 3, manganese 2, they are all paramagnetic ions. They can alter the relaxation times of tissue and create a contrast image. Gadolinium, iron 3 and manganese 2 all are used in MRI. MRI is an important technique for imaging. The full form of MRI is magnetic resonance imaging. You have studied about this in NMR. Now gallium 68. Gallium 68 is useful for positron emission tomography as a positron source. This isotope emit positron and that's why it is used for positron emission tomography. Metals in treatment. Various metals are used for the treatment. For example, platinum. Platinum is a part of cisplatin drug which is used for the treatment of cancer. And there are several derivatives of cisplatin. Gold. Gold is used for the treatment of rheumatoid arthritis. Lithium is used for the manic depression disorder. दिमाग से जो बीमार रहता है, जो बहुत ही डिप्रेस रहता है, वैसे बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग लिथियम के सॉल्ट्स का यूज करते हैं. जिंक जनरली टू हील वुंड्स एंड टू ट्रीट हर्पिस वायरस के लिए के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है. सिल्वर टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एट द बर्न साइट फॉर वुंड पेशेंट. जले हुए जगह पे जो घाव होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं. बिस्मथ एज एन एंटासिड. बिस्मथ का यूज हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं, जैसे बिस्मथ सब सैलिसाइलेट. लैंथेनम इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ फॉस्फेट बाइंडर एज ए फॉस्फेट बाइंडर. लैंथेनम का यूज हम लोग किडनी डिजीज को ठीक करने के लिए करते हैं. सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का यूज हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स में करते हैं. एक कॉमन फीचर है ये तीनों एलिमेंट का, इनमें जो लिगेंड्स होता है वो फॉस्फीन होता है. बायोमिनरलाइजेशन. बायोमिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट मिनरल्स. वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म मिनरल्स जनरेट करते हैं, ऑफन टू हार्डन एग्जिस्टिंग टिश्यूज. सामान्यतया जो ऑर्गेनिज्म मिनरल जनरेट करते हैं, इससे उसका जो टिश्यू है वो थोड़ा टफ हो जाता है, मजबूत होता है. जैसे कोरल्स एक
समुद्र में पाया जाने वाला कुछ स्पीसीज है जो बायो मिनरल्स का जनरेट करते हैं, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का वो जनरेट करते हैं। These tissues are classified as mineralized tissues। टिश्यूज जो हार्ड हो जाता है बायो मिनरल के कारण, ऐसे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं बायो मिनरलाइज्ड टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इज द बायो मिनरल विच इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म सच एज corals and bryozoans। Silica, which is found in diatoms। Apatite is phosphate carbonate, which is found in vertebrate teeth as enamel and vertebrate bone। Types of inorganic substances in biology। Inorganic substances biology में कितने प्रकार के हैं? First one is alkali and alkaline earth metals। The alkali and alkaline earth metals act as ionic electrolytes, and the most common alkali and alkaline earth metals are sodium and potassium alkali metals and magnesium and calcium alkaline earth metals। All these four elements are mainly found as chlorides, phosphate and carbonates in living system। Transition metals, you know what is transition metals? Group D elements। Transition metals are commonly found in species as trace elements, with zinc and iron being the most common। ट्रांजिशन मेटल जो है लिविंग स्पीसीज में मेनली ट्रेस एलिमेंट के रूप में पाया जाता है, उनमें से जिंक एंड आयरन सबसे ज़्यादा कॉमन है। एज प्रोटीन कोफैक्टर्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दीज मेटल्स आर यूज। प्रोटीन कोफैक्टर्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में भी इन मेटल्स का यूज किया जाता है। फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स सच एज कैटलेज एंड ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन सच एज हेमोग्लोबिन मेनी आर नेसेसरी। साथ साथ में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कैटलेज हो गया, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन हो गया, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन है। इसमें इस प्रोटीन के सेंटर में आयरन होता है और आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है। Main group compounds। In addition to metals, many other elements are bioactive। मेटल के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट बायोएक्टिव हैं। All life needs sulfur and phosphorus। जितने भी जीव जंतु या हैं उन्हें सल्फर या फास्फोरस कहीं ना कहीं फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है। फॉस्फोरस अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज ए फॉस्फेट। फॉस्फोरस मेनली फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है लिविंग सिस्टम में। इन ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर अकर्स रेंजिंग फ्रॉम सल्फेट टू सल्फाइड। सल्फर बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, जिसमें सल्फेट से सल्फाइड है। सेलेनियम इज ए ट्रेस एलिमेंट दैट इज इम्प्लीकेटेड इन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन। सेलेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन में पाया जाता है। कोफैक्टर। कोफैक्टर इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। A cofactor is a chemical compound or metallic ion that is not protein। बोल रहा है एक cofactor एक मेटल केमिकल कंपाउंड या मेटेलिक आयन है जो जनरली प्रोटीन नहीं है, बट इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ एन एंजाइम एज ए कैटलिस्ट। लेकिन किसी भी एंजाइम के कैटलिस्ट के रूप में परफॉर्मेंस में ये आवश्यक होता है। कोफैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पर मॉलिक्यूल्स। कोफैक्टर को हम लोग हेल्पर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, दैट असिस्ट इन बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में असिस्ट करता है, मदद करता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स मेनली आर मेटल आयन, फॉर एग्जांपल क्यूप्रिक आयन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। Cytochrome oxidase is one enzyme in which center metal ion is copper। Ferrous or ferric are found in enzymes such as catalase, cytochrome, nitrogenase, hydrogenase। We will learn about each of these in next chapters। Magnesium is found in DNA polymerase, very important। Which metal is found in DNA polymerase? Magnesium and hexakinase। Manganese is found in arginase। Molybdenum is found in nitrate reductase and nitrogenase। Nickel is found in urease। Urease is responsible for the catalysis of decomposition of urea। Zinc is
an important metal ion in biological system which is found in alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase, carboxypeptidase. Zinc is an important metal ion in biological system which is found in alcohol dehydrogenase, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको Ca भी बोलते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज इसको बोलते हैं Cp भी बोलते हैं. The cofactor contains both an inorganic and organic component in many cases. कोफैक्टर हो सकता है कि उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों एक साथ हो. फॉर एग्जांपल इन हेमीप्रोटीन्स have a porphyrin ring coordinated to metal iron. Now we will see organic factors. Organic factors are a small organic molecules typically less than 100 Dalton of molecular mass that can be loosely or strongly bound to the enzyme and are directly involved in the reaction. Organic cofactors generally 100 Dalton से कम molecular mass वाले organic molecules हैं जो loosely या strongly can be bound to the enzyme, जो आ तो loosely या strongly enzyme से bound रहता है and directly involved in the reaction. और enzyme जिस reaction को catalysis करता है उस reaction में directly involve होता है. For example मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 में पाया जाता है. मिथाइल कोबालिन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर. एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C में पाया जाता है. Okay, we will see in the next chapter about point-wise theory of bioinorganic chemistry. This chapter is a big chapter. You will learn many things in this chapter which are important for various examinations such as CSIR, NET, GATE, IIT JM and other examinations. Thank you. Bye.